हेलो हेलो सुशील। हाँ विक्रम। यार एचआर का मेल आया है यार। क्या तुझे भी आया है? हाँ यार, एक मेल आया है, फ्राइडे को मीटिंग है कोई। शुक्रवार को बुलाया है? कुछ पता है मतलब क्यों बुलाया है? नहीं यार, मुझे तो कोई आइडिया नहीं। यार मुझे ना बहुत डर लग रहा है, कहीं पिंक स्लिप तो नहीं दे रहे यार। अभी कुछ दिन पहले ही पता चला कि मुकेश को भी उसकी कंपनी ने निकाल दिया है। अरे यार तू शुभ शुभ बोल ना। यार बहुत डर लग रहा है मुझे तो। ठीक है, कल मिलते हैं। मैं कम इन? अरे हेलो विक्रम, आप आ गए? आपको मेल आपने देखा ना? जी जी हाँ मैम देखा। हाँ, अभी आपको एक और मेल आएगा, ठीक है? उसमें आपको मतलब फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत में ही सिलेक्ट करना है कि आप कौन सी टैक्स रिजीम में जाएंगे, ओल्ड या फिर आप न्यू में फाइल करना चाहते हैं अपना टैक्स, ठीक है? मैम मतलब पिंक स्लिप नहीं मिल रही? पिंक स्लिप? किसने बोल दिया पिंक स्लिप? भाई आपको बस अब ओल्ड अपनी प्रेफरेंस बतानी है, ओल्ड टैक्स रिजीम या फिर आप नए वाले में कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो आप अगर साल की शुरुआत में ही बता देंगे तो ये आपके लिए भी अच्छा होगा और कंपनी के लिए भी। हमें भी पता होगा आप किस रिजीम में टैक्स फाइल कर रहे हैं, ठीक है? ओके मैम, कर दूंगा, थैंक यू। જોયું તમે એચઆર નો મેલ મળતા જ કેવો વિક્રમનો શ્વાસ થંભી ગયો હતો, પરંતુ એચઆરની વાત સાંભળીને હવે વિક્રમના જીવમાં જીવ આવ્યો છે। જરૂરી નથી કે એચઆર નો મેલ હંમેશા ફાયરિંગ કે હાયરિંગ માટે જ આવે। હકીકતમાં આવકવેરા વિભાગે કંપનીઓને કર વ્યવસ્થા પસંદ કરવામાં કર્મચારીઓની મરજી પૂછવા માટે કહ્યું છે। જો તમે પગારદાર છો તો તમારી ખામોશી કે મૌનને આવકવેરા વિભાગ નવી કર વ્યવસ્થા માટે હા માનીને ચાલશે, તેને આ રીતે સમજો। કેન્દ્રીય પ્રત્યક્ષ કર બોર્ડ એટલે કે CBDTA કંપનીઓને કહ્યું છે કે તે કર્મચારીઓને પૂછે કે તે નવી કે જૂની કર વ્યવસ્થામાંથી કઈ પસંદ કરવા માંગે છે। કર વ્યવસ્થાના હિસાબે જ પગાર પર કરની ગણતરી થશે અને કંપની સ્ત્રોત પર કર કપાત એટલે કે TDS કાપશે। નાણાકીય વર્ષ 2023-24 એટલે એસેસમેન્ટ યર 2024-25 થી નવી કર વ્યવસ્થાને ડિફોલ્ટ વિકલ્પ બનાવાયો છે। તમે આવકવેરા વિભાગની વેબસાઇટ પર મૂકવામાં આવેલા કેલ્ક્યુલેટર દ્વારા પોતાના માટે યોગ્ય કર વ્યવસ્થા પસંદ કરી શકો છો, જેના માટે તમે નાણાકીય વર્ષ 2023-24ની અંદાજિત કમાણીના હિસાબે બંને કર વ્યવસ્થાઓમાં કરની ગણતરી કરો। એક નોકરિયાત તરીકે તમારી કંપનીને પોતાની પસંદગીની કર વ્યવસ્થાની જાણકારી આપવી પડશે। જો તમે નવી કે જૂની કર વ્યવસ્થામાંથી કોઈ એકને પસંદ નથી કરતા તો કંપની આપોઆપ નવી कर व्यवस्था हेठल टैक्स कापशे। तो सरकार ने एक तरह से ये कहा एम्प्लॉयर्स को कि अपने एम्प्लॉयज से उनकी वो ले लीजिए, ऑप्शन पूछ लीजिए कि उनकी इच्छा क्या है, उनकी इंटेंशन क्या है। क्या वो न्यू टैक्स रिजीम में रहना चाहते हैं या ओल्ड में जाना चाहते हैं। अब ओल्ड में जाने का सवाल पूछना है, तो अदरवाइज न्यू में तो है ही है। तो वो जो TDS काटा जाएगा उसकी इंटेंशन के लिए सर्कुलर इशू किया गया ताकि किसी किस्म का कोई कंफ्यूजन ना हो। अगर आप सर्कुलर के लास्ट में पढ़ेंगे तो उन्होंने इस बात की परमिशन दी है कि एम्प्लॉई को ये अपनी मर्जी है कि वो किसको चूज करता है, वो ऑप्शन बाद में भी चूज कर सकता है। तो बिल्कुल ये ठीक है कि अभी आपके एम्प्लॉयर ने TDS काट दिया न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से, लेकिन आप फिर भी रिटर्न भरते वक्त आपकी चॉइस है। अगर आप सैलरीड हैं तो आपको कितनी भी बार आप चेंज कर सकते हैं, ऐसी आपको छूट है। लेकिन अगर आप बिजनेस में हैं तो आपको एक ही बार रिजीम में आने की इजाजत है, उसके बाद नहीं मिलती है। સામાન્ય કરદાતા પાસેથી મળનારા ટેક્સનો ઉપયોગ સરકાર જનકલ્યાણકારી યોજનાઓ ચલાવવા અને વિકાસમાં કરે છે। નાણાકીય વર્ષ 2022-23માં અસ્થાયી એટલે કે પ્રોવિઝનલ રીતે નેટ ડિરેક્ટર ટેક્સ કલેક્શન 16.61 લાખ કરોડ રૂપિયા રહ્યું। નાણાકીય વર્ષ 2021-22માં ટેક્સ કલેક્શન 14.12 લાખ કરોડ રૂપિયા રહ્યું હતું। એક વર્ષમાં ટેક્સ કલેક્શનમાં 17% વધારો થયો। ડાયરેક્ટ ટેક્સ કલેક્શનનો એક મોટો હિસ્સો સરકારની પાસે TDS સ્વરૂપે આવે છે। નવી કર વ્યવસ્થાને વર્ષ 2020માં રજૂ કરવામાં આવી હતી। આ નવી કર વ્યવસ્થાને આકર્ષક બનાવવા માટે નાણાકીય વર્ષ 2023-24ના બજેટમાં ઘણા પગલાં ભરવામાં આવ્યા છે। હવે નવી કર વ્યવસ્થામાં 7 લાખ રૂપિયા સુધીની આવક પર કોઈ ટેક્સ નહીં લાગે। નવી વ્યવસ્થામાં સ્લેબની સંખ્યા 6 થી ઘટાડીને 5 કરવામાં આવી છે। આવકવેરા છૂટની મર્યાદાને 2.5 લાખથી વધારીને 3 લાખ રૂપિયા કરવામાં આવી છે। તો બીજી તરફ સ્ટાન્ડર્ડ ડિડક્શનને તેનો હિસ્સો બનાવાયો છે। માનવામાં આવી રહ્યું છે કે આવકવેરા વિભાગ ઈચ્છે છે કે તમે વર્ષની શરૂઆતમાં જ પોતાની પસંદગીની કર વ્યવસ્થા પસંદ કરી લો અને ટેક્સ તે હિસાબે જ ભરો। કદાચ આ જ કારણસર આ નિર્દેશ આપવામાં આવ્યા છે।
જૂની કર વ્યવસ્થામાં HRA, ATC, ATD અને સેક્શન 24B સહિત 70 જેટલી છૂટ અને કપાત મળે છે, જે નવી કર વ્યવસ્થામાં નથી. જો કે તેમાં કરના દર ઓછા રાખવામાં આવ્યા છે. નવી અને જૂની કર વ્યવસ્થામાં તમારા માટે કોણ સારું છે એ જાણીએ અમારા ટેક્સ એક્સपर्ट પાસેથી. लेकिन अगर आप कंपेयर करेंगे अपनी डिडक्शंस को, एग्जम्पशंस को, और आप 1,50,000 रुपए का डिडक्शन लेते हैं तो 16 लाख रुपए तक आपका जो टैक्स का स्लैब है और ओल्ड टैक्स रिजीम में और न्यू टैक्स रिजीम में वो बिल्कुल बराबर रहता है. ऐसी कैलकुलेशंस के हिसाब से निकला और सरकार ने उसको कैलकुलेट किया हुआ है. जो मार्जिनल टैक्स रिलीफ का इशू था, जहां दिक्कत आ रही थी हम सबको कि 7,01,000 रुपए पर क्या होगा, वो हमें ऑलरेडी उसके ऊपर उन्होंने 27,500 रुपए तक की छूट दे दी है. तो वो भी प्रॉब्लम अब सॉल्व हो गई है. तो मेरा मानना तो ये है कि आप एक बार जो आप डिडक्शंस लेने जा रहे हैं, एक बार अपना कंपैरिजन चार्ट बना लीजिए. अगर आपको लगता है कि आपको ओल्ड टैक्स रिजीम फायदे में है, जिसके कि मुझे नहीं लगता, चांसेस कम है, क्योंकि ऊपर एक स्लैब के बाद जाकर के सरचार्ज को भी घटा दिया गया, जिससे हाईएस्ट टैक्स रेट भी घट गया है. इवन बड़े सैलरीज वालों के लिए भी आसान हो गया है. तो फिर भी लेकिन आप कंपेयर कर सकते हैं. आप कंपेयर कीजिए. मेरा मानना ऐसा है कि आपको न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट करना चाहिए. ज़्यादा केसेस में वही फायदेमंद है और वही आपको रिलीफ देने वाला है कि सरकार जो है वो न्यू टैक्स रिजीम को प्रमोट करना चाहती है और ओल्ड टैक्स रिजीम में नहीं रहती. इसके कई कारण हैं. एक कारण तो ये है कि जो आपको बिना बात के लिए आपको कागज रखने पड़ते हैं. आप ATC का रिबेट ले रहे हैं, आपको डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करने पड़ेंगे, तो उसके लिए डिस्क्रिशनरी पावर्स हो जाती है. उसके साथ साथ अभी गुजरात में एक इनकम टैक्स की रेड हुई, जिसके अंदर पॉलिटिकल पार्टीज के कुछ पेपर्स मिले, जहां पर उन्होंने डोनेशन की रसीदें जो है बोगस दे रखी हैं. ऐसा सरकार ने एलिगेशन लगाया है. मैं अपनी तरफ से किसी बात को नहीं कह रहा हूं. ऐसा एलिगेशन है कि वो बोगस रसीदें हैं, तो अपना अपना डिफेंड करना पड़ेगा. तो सरकार लिटिगेशन को कम करना चाहती है, झगड़ों को कम करना चाहती है. उस वजह से न्यू टैक्स रिजीम को प्रमोट करती है और मुझे लगता है कि हमें फायदा भी उसी में है ज्यादातर. આવા જ ઇન્ટરેસ્ટિંગ વિડીયો જોવા માટે આપ મની 9 ગુજરાતીની YouTube ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી શકો છો. સાથે જ રેડ આઇકન બટન દબાવજો. એટલું જ નહીં, મની 9 ગુજરાતીના ફેસબુક પેજને પણ આપ લાઈક કરી શકો છો અને ટ્વિટર અને ઇન્સ્ટાગ્રામ આ બંનેને ફોલો કરવાનું ના ભૂલતા, કારણ કે સમજ છે તો સહજ છે.